So hello everyone, good evening and welcome to our ongoing KP astrology course. And yesterday we did the topic of health and disease, and we discussed a few cases. Okay, so and today also एक दो केस हम डिस्कस करेंगे related to health and disease, and then the other important aspect of the sixth house. That is a very important aspect, competition of any kind, any type. So I have a few examples. एक तो मैच वाला ही है, फिर एक अभी हमने प्रिडिक्शन किया था जब इंडिया में इलेक्शंस थे, who will win, वो प्रिडिक्शन था. And then there is another prediction that I have made and published on Facebook, that is Trump versus this lady Kamala Harris. तो सारे उसके वही हैं, प्रिडिक्शन करने का तरीका वही है. be it uh, be it a sporting event, a match, a tournament, a match, or be it even a court case, be it a written exam. Okay, a written competitive exam. सभी में वही sixth और 11th, mainly sixth and 11th is involved. ठीक है, sixth is the primary cusp, first, sixth, 11th. ये तीन cusp को ही mainly देखा जाता है और उसमें वैसा कोई खास वेरिएशन नहीं होता है. तीनों के लिए वही तीन इंपॉर्टेंट कस्प है, मेनली द सिक्स्थ कस्प एंड ऑफ कोर्स 11th कस्प इज, जैसा हम टाइम एंड अगेन आई हैव बीन एम्फसाइजिंग एंड बाय नाउ ऑल ऑफ यू नो, 11th कस्प इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कस्प. एनी क्वेश्चन, स्पेशली होररी क्वेश्चन, बगैर 11th कस्प के इन्वॉल्वमेंट के आपके फेवर में नहीं जाता है. कोई भी हो तो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी ही होगी 11th कस्प की. और 11th कस्प का वेटेज हम देखेंगे कैसा है. ठीक है, 11th कस्प के सिग्निफिकेशंस, उसका वेटेज कैसा है, स्पेशली इफ इट इज अ कंपटीशन बिटवीन टू पार्टीज, देन वी हैव टू सी किसके तरफ टिल्टेड है. तो अदरवाइज जस्ट फॉर योरसेल्फ और फॉर द पर्सन हु हैज आस्क्ड, 1, 6 and 11 है, आर द हाउसेस टू बी सीन. तो पहले चलिए एक दो केस हम डिजीज वाला, एक दो एग्जाम्पल और उठा लेते हैं. और एक्चुअली मेरे पास तो एग्जाम्पल्स बहुत हैं, लेकिन ये जो मेरा लैपटॉप खराब हो गया ना, पुराने से नए में ट्रांसफर करने में बड़ा इश्यू आ रहा है. ये लैपटॉप एज इट इज थोड़ा दिख, बट स्टिल काम भर का हमने कल डिस्कशन कर लिया था, जो बचता है वो आज थोड़ा बहुत कर लेते हैं, एंड देन वील सी दोस सिक्स्थ हाउस रिलेटेड अदर केसेस. सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ. ये देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना, बॉर्न विद अ होल इन द हार्ट. ये एक बच्चे का है, और उसको जो इसकी हम लोग जब हमने लॉन्गेविटी पढ़ा था ना, तो इस केस को हम लॉन्गेविटी एंगल से हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी. इफ यू गो बैक एंड चेक लॉन्गेविटी, तो यू विल फाइंड that we have already discussed this chart from the longevity angle. And death due to disease, he was born with a hole in the heart. ये हमारे इसका ही है, हमारे नेफ्यू, छोटा सा बच्चा था जिसका ये केस था. तो anyway, this boy was born with a hole in his heart. Sublord of the ascendant is Saturn, which signifies sixth house, through its sublord Venus, which is owner of both sixth and Marka seventh cusps. Sixth cuspal sublord is Mercury, sitting in the eighth house of serious disease, danger, etc.
sitting in the eighth house in its own star, thus signifying eighth very strongly. Mercury is also in rapt conjunction with Sun, okay, which signifies heart, which also signifies eighth as a level one significator. Sixth sublord, strong signification of eighth indicates dangerous, serious ailment. Mercury and Sun are both in Cancer, a watery sign representing heart. Okay, both Leo and Cancer same heart को देखते हैं. Does the does the sixth cusp of disease have any strength or positive significations to save the child? Okay, the answer is no. Sixth house is Taurus, an earthy sign which gives long duration and serious diseases. The lord of sixth, Venus, is signifying the 10th. It's not very good for, which is not 10th, is not very good for health or longevity. Star lord of sixth is Sun. Star lord of sixth is Sun. Brackets mein heart is signifying eighth. Sublord Mercury is already discussed. It may also be noted that ascendant, fourth cusp, bracket heart, eighth cusp, Cancer heart, 12th cusp all fall in watery signs, which represents blood circulation. The boy was born in Moon Mahadasha. Moon signifies 10th, which is not good for health, longevity. Moon owns the 8th house of Cancer, heart. The boy passed away in 1996 during Moon Ketu. Ketu signifies 6th, disease, and 5th, heart. Longevity of this chart has already been discussed. You can read it once again for yourself, or should I read it again if you want to note down some points and then discuss it? Otherwise, yeah, आप लोगों को, I think by now you would have got the hang of it. कभी भी कोई डिजीज रिलेटेड आपके सामने जब कोई चार्ट आता है ना, तो उसमें आप लॉन्गेविटी सीरियस डिजीज रिलेटेड कोई चार्ट आता है तो साथ में लॉन्गेविटी भी जरूर देख लीजिए. ठीक है, लॉन्गेविटी देखना जरूरी होता है. और बाकी तो राइट अप आपके पास है, उसको आप रेफरेंस में रखिए. एंड वो किताब का आपको सॉफ्ट कॉपी मिल गया है, गुड, दैट इज वेरी गुड. वो देखिए, उसको पढ़िए. इफ यू कैन फॉलो इट ऑन द सॉफ्ट कॉपी, अदरवाइज हार्ड कॉपी मंगवा लीजिए. उसमें यू विल फाइंड बहुत तरह के, उसमें आपको हर तरह के उसमें एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. द बेसिक रूल्स एंड बहुत एग्जॉस्टिव है. इट्स वेरी एग्जॉस्टिव. इट्स क्वाइट अ थिक बुक. उसमें इट हैज हाउ मेनी पेजेस, लेट मी चेक. ये करीब 230 पेजेस की किताब है. तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है. कृष्णमूर्ति जी के ये जो बेटे हैं ना, मिस्टर सुब्रमण्यम, ही हैज रिटन अ नंबर ऑफ गुड बुक्स, और सभी टॉपिक्स पे इन्होंने लिखा है. हरिहरन है, ही हैज आल्सो रिटन ओआरपी एंड केपी, दे हैव रिटन सम गुड बुक्स, तो ले लीजिएगा. ये वाली किताब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है, लकीली ये काफी बाद में लिखी गई है, तो इसमें द यूज ऑफ द इंग्लिश प्रिंटिंग एडिटिंग मिस्टेक्स नहीं है, इसमें मिस्टेक्स नहीं है. एंड बाय दिस टाइम आई थिंक कंप्यूटर्स वर इन वोग, सो मोस्ट ऑफ द चार्ट्स आर कंप्यूटर जनरेटेड. ऑफ कोर्स उस समय भी वही एफएमएस वगैरह पुराना ही यूज होता था. सो ये है, एक एग्जांपल सामने है आपके. इफ इट इज ओके, देन वील टेक अप अनदर एग्जांपल एंड देन we'll take up the other aspect of the sixth house. फाइनेंशियल गेन्स का वो हमने आपके साथ एक मुकेश अंबानी की जज की थी, एंड फिर अलग से फिर और अडानी का भी आपने डिस्कस किया था, उसको भी देख लीजिए अलग से. उसमें ऐसे एग्जांपल्स मिलने सिक्स्थ हाउस में. आप लोग अपने अपने हॉरोस्कोप देख लीजिए किसका कितना सिक्स्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियल एंगल से. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. कई बार दोनों एंगल से साउंड होता है हॉरोस्कोप, तो उसमें फिर बीमारी और पैसा एक साथ आता है, वो भी थोड़ा सा देखने की बात होती है. कहते भी है ना, बीमारी और पैसा, कई कई लोगों के साथ जो है बहुत पैसे वाले हैं लेकिन सीरियस बीमारी हो गई, तो ऐसा होता है.
Everybody is very quiet today. क्या बात है? अभी तक not a single word has been spoken by anyone except good evening. सर लर्न कर रहे हैं। या आवाज नहीं आ रही है? Something wrong with the system. सर परफेक्टली आवाज परफेक्ट आ गया। आ गया ना? आप लोग का आवाज धीमे आता है थोड़ा। एनीवे चलिए, फिर चलो विल टेक अप द नेक्स्ट नेक्स्ट चार्ट एक लेते हैं। एक ही और है मेरे पास, उसको ले लेते हैं। सर ये जो बीमारी वाला टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग टॉपिक है। अरे अब ठीक है ना, अब क्या करेंगे? अरे या, ये क्या आ गया? ये तो दूसरा चार्ट आ गया, कहाँ चला गया वो? एक मिनट, let me see where that has gone. नहीं, डिप्रेसिंग टॉपिक तो आपकी बात सही है, मैं मानता हूं, बट देन डिस्कस तो करना ही पड़ेगा ना। एक और था, कहाँ गया मेरे पास? थोड़ा चेक, जरा जस्ट जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके? मैं देखूं कहाँ चला गया वो। एक वो ब्लड कैंसर का केस था। वही तो आया था सर। नहीं नहीं, वो आया था, वो उसका वैदिक वाला था। तो वो, एक मिनट, लेट मी सी। मैंने आज उसको ट्रांसफर तो किया था अपने सिस्टम में, बट एक मिनट देखिए, रुकिएगा एक मिनट, हमको देखने दीजिए जरा। अच्छा नहीं, सॉरी, कोलोन कैंसर, ब्लड कैंसर में कंफ्यूज कर रहा था। हाँ, वो स्टमक कैंसर, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। इसमें कहाँ नजर आ रहा है? कहाँ जा रहा है वो? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना? जस्ट लेट मी चेक कि क्या चक्कर हो रहा है। ये सॉरी, अभी देखिए आप लोगों के सामने ये खुल जाएगा। ये आ गया। जी सर। हाँ देखिए, हेल्थ, डिजीज, लॉन्गेविटी, ये टाइम वाइम सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? आप नोट कर सकते हैं, अपने भी बना सकते हैं। 12 बजे रात की पैदाइश है ये। आप ये देखिए, इसमें आप देखिए, जुपिटर अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड of 1 and 7, thus signifying both strongly. Jupiter देखिए आप यहाँ पे, sublord of 1, untenanted cuspal sublord of 1 and 7, both, so signifying both strongly and assuming maraka significations because it is seventh lord, as well as significations for disease and illness, as it also signifies 6, 8, 10, 12 very strongly.
As you can see from this significator table, it signifies 6, 8, 10 and 12, all at A level. It signifies the 11th also. It signifies the 11th also, but the 6, 8 and 10 and 12, along with 7th signification, has a very, very, overwhelming impact on the horoscope. So 11th can give some resistance to fight the disease. But then itna signification jab hoga, Marka planet signifying 6, 8, 10 and 12, all at the A level, all at the A level. It's a very, 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 very sad combination to be born with. So this number one, देख पढ़ रहा हूँ, Jupiter untenanted cuspal sublord of 1 and 7, thus signifying both strongly and assuming Marka significations as well as significations for disease and illness, as it also signifies 6, 8, 10, 12 very strongly at the stellar level. And through it, sublord signifies the 5th. Sublord is Saturn. Okay, Saturn is signifying the 5th. Also note that Mercury, the sublord of 6th, is in Leo. Okay, which Leo represents stomach. Jupiter also inter alia. Inter alia means amongst other signification is significator for stomach also. Jupiter. Digestive system, stomach, and Jupiter is Karaka for diabetes, cancer. That day I told you, because growth को प्रमोट करता है जुपिटर. So negative connotation is कि cancer cells में क्या होता है, growth. Cancer cells, they multiply, and Jupiter becomes one of the karakas. Number two, with the start of Jupiter Mahadasha, the boy was diagnosed with diabetes, which started deteriorating very fast. And as soon as Jupiter Rahu started, he was diagnosed with colon cancer. Jupiter and Rahu both are Karaka for cancer. Rahu signifies 5th, stomach. The boy passed away in Jupiter, Rahu, Ketu, Mars. Ketu and Mars are strong Marka and Badkas. Ketu and Mars are strong Marka and Badkas. Number 5, cause of death is shown by 8th house, lord of which is Jupiter. Disease. That means due to disease, the death was, the death was written due to disease. Cause of death is shown by 8th house, lord of which is Jupiter, disease, and sublord is Saturn in 5th house, stomach. Note the rapt conjunction between Jupiter and Neptune. और Neptune मैं इसलिए mention करता हूँ because I have taken a leaf out of Mr. Subramaniam's book, this medical astrology, because he has used Neptune. And if you remember, once I told you also, कृष्णमूर्ति जी ने भी शुरू में कहीं एक दो जगह नेपट्यून को मेंशन किया था. नेपट्यून इज सॉर्ट ऑफ मतलब जो भी थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च हुआ है, दे कंसिडर इट एज अ वेरी वेरी मैलेफिक प्लैनेट. इट एक्ट्स लाइक राहु मोर और लेस. तो जहां भी नेपट्यून आता है, मैरिजेस में भी मैरिज को डिस्टर्ब करता है. जहां भी वो आता है, एंड इफ इट इज इन कंजंक्शन विथ एनी प्लैनेट, देन उस प्लैनेट को भी वो खराब करता है. यहाँ पे आप देखिए जुपिटर और नेपट्यून का बहुत एकदम काफी रैप्ट कंजंक्शन है. एक 659 पे है, एक 449, 2 डिग्री के फासले पे दोनों बैठे हुए हैं. और ये है, दिस वाज एक्चुअली वेरी, जो ये है, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सामने आपके है द फर्स्ट sublord, first cuspal sublord and 7th cuspal sublord. जुपिटर है, अनटेनेंटेड है, 6th हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा है, 8th को भी सिग्निफाई कर रहा है, 10th को सिग्निफाई कर रहा है, 12th को. देयर इज एक्चुअली नो सेविंग ग्रेस. जो भी थोड़ा बहुत उसको कैंसर होने के बाद जो 1-2 साल वो सर्वाइव किया होगा, मे बी दैट वाज बिकॉज जुपिटर आल्सो सिग्निफाइज द 11th हाउस. सो द रेजिस्टेंस टू fight the disease that may have lasted for some time, but as soon as Rahu set in, it was over. So this is another straightforward case. कितना देर क्लास होगा? आवाज नहीं आ रही है. Somebody saying, या पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी? बैकग्राउंड है सर.
आज बहुत ही धीमी है आवाज सबकी। बैकग्राउंड से आवाज थी सर। सर आपकी आवाज हमें क्लियर आ रही है, कोई इशू नहीं है। हाँ, आवाज अच्छी आती है। नहीं नहीं, आप लोग कुछ कोई पूछ रहा था अभी कुछ, या फिर बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी किसी नहीं, के? केवल बच्चे की आवाज थी किसी के बैकग्राउंड यहाँ से आवाज थी सर। बैकग्राउंड से आवाज थी, ओके ओके। चलिए ठीक है, बीमारी अगर बहुत डिप्रेसिंग है तो हम लोग कुछ कहीं और सर चलते हैं। चलिए ठीक है, मेरा समझ में मेरा एक छोटा सा सवाल है नेपच्यून के हवाले से। हम नेपच्यून को एज ए वैदिक स्टार तो प्लेनेट तो यूज कर रहे हैं, नहीं, हम यूपी में तो देखिए इसका ऐसा है यूज ना, कोई नहीं है सच। मैंने हाँ आपको बताया ना कि मैंने डाल जी दिया हाँ है, जी हाँ क्योंकि इन्होंने हाँ मेरी मेरी कोई जो है ना इस पर वो अपनी वो नहीं है। अब इन्होंने जी ठीक एक दो जगह कृष्णमूर्ति जी को भी मैंने देखा था, मैरिज के केसेस में उन्होंने डाला था नेपट्यून। तो मुझे ऐसा लगा कि नेपट्यून को ये लोग मैलेफिक प्लैनेट ट्रीट करते हैं। आप इनकी सुब्रमण्यम जी की किताब पढ़िएगा तो आप देखिएगा नेपट्यून को इन्होंने काफी यूज किया है, और सब नेगेटिव है। कॉनिटेशन जो है ना उसका नेगेटिव है हर जगह जहां भी नेपट्यून का जिक्र आया है। तो इसलिए मैंने इस रेफरेंस में डाल दिया कि हो सकता है आगे भाई, चलो देखते हैं, आगे रिसर्च करते हैं तो शायद कहीं कहीं। वैसे तो मैंने अपने सिस्टम से, आप सच पूछो तो पुराने वाले लैपटॉप में तो वो मैं उसमें जो कस्टमाइज करते हैं प्रेफरेंसेस में जा करके मैंने आउटर प्लैनेट्स को हटा ही दिया है। ये दूसरा लैपटॉप है, तो इसमें जो है ना, इसको जब मैंने ट्रांसफर किया तो इसमें मैंने हटाया नहीं। और देखा कल जब मैंने फिर से एक बार सुब्रमण्यम की किताब में पढ़ रहा था तो मैंने देखा इसमें नेपट्यून का बहुत जिक्र है। तो हमने कहा चलो मैं इसको ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। तो इसको ठीक। फिर आई एम नॉट श्योर। आपकी आपकी आपके सवाल का जवाब मेरे पास यही है कि मैंने कहीं से इन लोगों को देख करके मैंने डाल दिया है, मेरा अपना कोई वो नहीं है। आई डोंट नो, इट मे बी दिस वे, इट मे नॉट बी दिस वे। सर एक तो बड़ा जनरल सा सवाल पूछ रहा हूँ सर, ये मार्का और बादका को क्या हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? जो मार्का है वो बादका हो सकता है, जो बादका है वो मार्का हो सकता है। नहीं देखिए, ऐसा है ना, आपको याद है बाधिका प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, कब किसको बाधिका प्लैनेट कहते हैं? कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ, आपने लॉन्गेविटी का क्लास किया था ना शुरू शुरू में एकदम, जी जी। जब क्लासेस शुरू हुए थे। तो देखिए ऐसा है ना, वो आपको लॉन्गेविटी के तो मैंने वो राइट अप भी भेज दिया है। बाधिका देखिए, मूवेबल हाउसेस जो हैं, तीन तरह के हाउसेस होते हैं ना, मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल। ठीक है, मूवेबल हाउसेस के लिए जो 11th वहां से राशि होती है, जो 11th होती है वो, उसका जो सिग्निफिकेटर वो बाधिका होता है। फिक्स्ड के लिए 9th का सिग्निफिकेटर जो है वो बाधिका होता है। ठीक है, 9th राशि। और डुअल के लिए जो 7th वहां से होती है वो प्लैनेट फिक्स्ड है, ये बाधिका होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें 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 कौन है, ये लग्न कौन सी है बताइए आप मुझे देख करके, कोई बताए लग्न क्या है? टॉरस। टॉरस है। टॉरस है तो सर। टॉरस के लिए बाधिका कौन सा हाउस होगा? विच हाउस विल बी द बाधिका हाउस फॉर टॉरस? द 9th हाउस विल बी द बाधिका हाउस। ओके, तो 9th हाउस का सिग्निफिकेटर यहां देखिए कौन है, इट इज मून। ठीक है ना। और केतु में क्यों इनका ये बाधिका का काम किया? बिकॉज केतु रिप्रेजेंट्स मून। ओके, इट इज इन कैंसर। तो केतु represents moon, which is a significator of the 9th house. So Ketu takes on the role of Badka. So Ketu played a role in bringing an end to his life as a Badka planet. ठीक है, and Mars तो 7th house है ही है। मार्स 7th का लॉर्ड बाधिका है। जुपिटर itself is a Maraka because क्योंकि 7th का वो अनटेनेंटेड सब लॉर्ड है। ठीक है, चलिए फिर वील गो टू समथिंग एल्स, छोड़ देते हैं, हो गया। हेल्थ एंड डिजीज, आई गेस, जो कि मैंने आपको बताया था बहुत लंबा चैप्टर है और पढ़िएगा बहुत। मैंने कहा था कि एक में आज सर ये तो समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है, इसकी कोई रेमेडी हो सकती है क्योंकि पीपल आर रेमेडी, मैं आपकी एक क्लास है मैं पढ़ाऊंगा ना रेमेडी। तो देखिए इसके लिए क्या रेमेडी होगी, लेट अस बी वेरी वेरी अब मैं उन एस्ट्रोलॉजिस्ट में तो हूँ नहीं कि रेमेडीज होती है, बट इतने सीरियस चीजों की रेमेडीज सच पूछिए तो नहीं होती हैं।
और अगर कोई, हाँ, थोड़ा सा कुछ जो है इसको मिजरी को मिटिगेट किया जा सकता है जो रेमेडीज होती हैं, बट इतने सीरियस प्रॉब्लम्स के लिए कोई रेमेडीज एज सच है नहीं। इसको थोड़ा सा मिटिगेट करके, मतलब सफरिंग को थोड़ा सा टाला जा सकता है या कम किया जा सकता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है ऐसे ओके। केसेस में। रेमेडीज ओके। होती हैं, दे विल हेल्प यू। रेमेडीज होती हैं कि जैसे जैसे आपको मान लीजिए कि आपकी नौकरी में कोई तरक्की होने वाली है, ठीक है, आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है, और यू आर गोइंग टू गेट अ रेज, तो उसमें अगर हम उपाय कुछ करते हैं, रेमेडी करते हैं, तो जो आपको रेज, मान लीजिए कि आप 1,000 रुपए का आप रेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो सकता है बढ़ करके 1,500 हो जाए, या फिर वो, और आज एक्सपेक्ट आप 6 महीने बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है 3 महीने में हो जाए। ऑफ कोर्स दशा अंतरदशा वही चलनी चाहिए, वो सब अपनी जगह पे है। ठीक है, कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तो हम रेमेडीज करते हैं उसके लिए। जो एक्सीडेंट प्रोन लोग होते हैं वो रेमेडियल मेजर्स करते हैं, तो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन इंजरी जो उसमें लिखी हुई है वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, आप बच जाएंगे, इंजरी कम होगी, यू विल कम आउट ऑफ इट। बीमारी अगर कुछ होने वाली है, अगर हम शुरू से हेल्थ को लेके चलते हैं, एंड इफ वी आर कॉन्शियस अबाउट आवर हेल्थ, और जो मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं वो खाते रहे, साथ में हम रेमेडियल मेजर्स भी को रिजॉर्ट करते रहें, तो दे हेल्प। बट लेट मी से कि ऐसे ऐसी बीमारी में शायद नहीं हेल्प करेगा। इफ द मैटर इज सो सीरियस, आई एम सॉरी, दे मे नॉट हेल्प। और मैं मना भी कर देता हूँ, मैं किसी को इसमें झूठा, मैं वो इसमें आश्वासन वो नहीं देता हूँ कि भाई आप ये कर लो, ये कर लो, ठीक हो जाएगा। नो, ऐसा है नहीं, चमत्कार नहीं होता है। वो होता है, देखिए ऐसा है ना, देर आर मिरेकल्स तो होते हैं, बट वी कैन नॉट डू इट। वो जो सिद्ध पुरुष लोग होते हैं जिन्होंने कुछ साधनाएं की हुई हैं, दे हैव स्पिरिचुअल पावर्स। तो हीलर्स आपने सुना होगा, हीलिंग होती है, क्रिश्चियनिटी में बहुत हीलिंग है, हीलर्स होते हैं, वो कर देते हैं ठीक। वो कैंसर को भी ठीक कर देंगे, वो बहरे को जो है सुनने की शक्ति दे देते हैं, जो चल नहीं पा रहा है उसको चलवा देते हैं। वो अलग चीज है, वो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज नहीं है। दैट इज समथिंग, वो अलग है। वो लोग सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको पावर्स होती हैं, स्पेशल गॉड गिफ्टेड पावर्स, जिसके लिए आपको करना पड़ता है। वो दुनिया अलग है। मैं थोड़ा बहुत हूँ उसमें, बट नॉट फुली इनटू इट। ओके, आई यूज्ड टू बी इनटू इट वन वन टाइम, बट आई गिव इट अप, मैंने छोड़ दिया। जिसको तंत्र मंत्र बोलते हैं, उससे होता है पॉसिबल। चलिए, विल गो टू समथिंग एल्स, छोड़ देते हैं इसको। अब उस पर मैंने वीडियो रिलीज किया था, इंडिया था, उसके ऊपर हमने वीडियो रिलीज किया था। अब आप लोग खुद, आप लोग अब आप कर सकते हैं। देखिए आपके सामने चार्ट है, ठीक है, तो हमने एक चार्ट बनाया था बीजेपी के लिए, और उसी को 7 से रोटेट करके वो ऑपोजिशन का चार्ट हो गया था। तो ये हमने कब किया था? ये हमने किया था 25/5/2024 को। ठीक है, इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे 4 जून को। और इस बार थिंग्स वर वेरी वेरी, आपको तो पता है, आपको पता है कि इस बार इट वाज एनीबॉडीज गेम। ऐसा कुछ नहीं था कि कौन जीतेगा, इसीलिए इट वाज अ फोरगॉन कंक्लूजन करके इस बार ऐसी बात थी नहीं। तो इसलिए और भी ऑल द मोर रीजन क्यों मैंने इसको चार्ट को बनाया था। अब आप लोग खुद देखिए इसको, और थोड़ा देख के मुझे एनालाइज करिए। ये चार्ट जो है ना बीजेपी के लिए है, तो मैंने लिखा हुआ है, आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज एक ये मैंने ये वाला जो है ये बनाया है, ठीक है, और ये वाला इंडिया ऑपोजिशन के लिए बनाया है। कस्पिल सब ascendant cuspal sublord, moon signifies बीजेपी का 3rd and 6th, ठीक है, A B, and through its sublord Rahu it signifies 10th 9th, ठीक, पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस। 10th 9th पॉलिटिक्स में कोरोनेशन के लिए बोलते हैं, ताजपोशी जिसको कही जाती है उसके बोलते हैं। 10th is for government and head of government. Rahu represents Jupiter. Rahu represents Jupiter, which signifies 11th house. Okay, Rahu represents Jupiter, which signifies 11th house, which is for gains and fulfillment of wishes. Rahu is also conjunct with Mars, which signifies 4th, 6th, 10th, 11th. 4th is for
general masses, support of the general masses. 6th is for victory. 10th is for government. 11th is for gains and fulfillment of wishes. Rahu, however, is the untenanted cuspal sublord of the 7th cusp also, which augurs well for the opposition. तो वीक पॉइंट यहाँ क्या है कि बीजेपी के चार्ट में, बीजेपी के लिए जो चार्ट बनाया गया, इसमें Rahu, however, is the untenanted cuspal sublord of the 7th cusp, which augurs well for the opposition. ये तो राइट अप है बीजेपी के लिए, ठीक है. अब ऑपोजिशन के लिए राइट साइड में देखिए, 7th cuspal sublord is Rahu, untenanted cuspal sublord, which is good for opposition, which is good for them. Other stellar significations of Rahu are already discussed and is not favorable for the opposition. Rahu बीजेपी के फेवर में ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Sublord of Rahu is Venus, signifying 11th, which is favorable for BJP. Okay. Now, ये हो गया, ये पढ़ लिया. तो सर, the balance was tilting in favor of BJP. अब इसमें देखिए, इसमें हमने ये भी किया 2024. Why 1/6/2024? Because that was the last day of voting. उसके बाद वोट नहीं पड़ने थे. तो 1/6/2024. उसके बाद तो बस merely counting जो वोट्स जाने थे ईवीएम मशीन्स में, वो फर्स्ट का को हो जाता. ठीक है. तो ये दशा कॉम्बिनेशंस 1 जून 2024 के लिए लिया गया. तो उस दिन दशा कॉम्बिनेशंस वर केतु, राहु, मरकरी, राहु, मार्स, and through Mercury 11 and 12. Ketu is also in its own sub. Okay, so double signification हो गया. Rahu is already discussed. Mercury 11 and 12, which is mixed through its sublord Jupiter 4th, 11th, and its sublord is Rahu, which is already discussed. So the dasa combinations were heavily tilted in favor of BJP. Okay, prediction through RPs. Sun, मैंने इसको ऐसे ही ले लिया, RPs डाल दिया था, मैंने कहा चलो इससे भी देख लेता हूँ. Sun 1 to 6, Saturn 7, 8, 6 being untenanted discussed, Jupiter already discussed. So everything was very heavily favored, tilted in favor of बीजेपी. तो ये मैंने वीडियो डाला है, आप लोगों ने शायद देखा होगा. देखिए ऊपर वीडियो की डेट हमने लिखी हुई है, वीडियो डेटेड 28/5/2024, जिसमें कि आई डिक्लेयर्ड दैट बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मोदी इज गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही वाज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट. इसमें आप लोग बताइए, ये 6th हाउस में कंपटीशन को हम इस प्रकार से देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं. 1st, 6th, 11th. द रूल इज वेरी सिंपल. 1st, 6th, 11th कस्पल सबलॉर्ड्स को उठा करके उनके सिग्निफिकेशंस को देख करके दोनों टीम्स के लिए कंपैरिजन कर दीजिए. जिसके तरफ तराजू टिल्टेड हेवीली, दैट टीम इज गोइंग टू विन 9 out of 10 टाइम्स. एक बार शायद गलत हो भी, और इट मे बी वेरी क्लोज. जैसे अभी हम देखेंगे, एक इंडिया साउथ अफ्रीका वाला भी है, मैंने रखा हुआ है, नेक्स्ट उसी को डालेंगे. उसमें इट वाज सच अ क्लोज मैच, जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा. ठीक है. उसमें मैंने बोला था कि शायद इंडिया जीतेगा, बाकी सभी, वो अदिति का नंबर दी, मेरा नंबर भी नहीं है, मैंने तो कोई नंबर से निकाला भी नहीं था. बट इट वाज वेरी क्लोज. एनीवे, लेट अस डिस्कस दिस फर्स्ट. ये तो डिप्रेसिंग नहीं है ना, इसको देखिए, इसको देखिए. सर इसमें सन, मरकरी और जुपिटर, सन वीनस जुपिटर वो कंजाइनिंग में है. सन जुपिटर, जुपिटर और वीनस वो कंजाइनिंग में है सर. ठीक है. हाँ जी. अब पता नहीं इनका क्या इम्पैक्ट है. 6 तो अगर रोटेट करेंगे तो वो 12th हाउस देगा सन तो. हाँ, क्योंकि वीनस आ रहा है ना सर. हाँ. नहीं, रोटेट करेंगे, वो आपकी बात सही है. हमें तो सबलॉर्ड्स पकड़ के चलना है ना, सबलॉर्ड्स हमें पकड़ के चलना है. ठीक है. सर, लेकिन सर जब जुपिटर हम लेंगे तो जुपिटर के साथ फिर उसकी कंजाइनिंग के भी लेने पड़ेंगे. मिलेगा रिजल्ट मिलेगा. देखिए, जी हाँ. जुपिटर और सन भी तो है ना. जुपिटर इज सो हेविली टिल्टेड इन फेवर ऑफ बीजेपी. तो सन, जुपिटर एंड वीनस सभी कंजंक्ट हैं. ठीक है. तो सन क्या रिजल्ट दे रहा है इस अगर फर्स्ट हाउस ये बीजेपी के दे रहा है. जी हाँ. एक मिनट देखो ना, यहाँ वीनस जुपिटर दोनों 11th का सिग्निफिकेशन. जुपिटर, मैंने इस बात को नहीं डिस्कस किया, आप ही ने अभी हाईलाइट किया, तो इससे तो और स्ट्रेंथ मिल गई बीजेपी को.
जी मे हाँ बी आई मिस्ड दैट पार्ट, ओके, आपने पकड़ा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट उसमें आप इसको नोट कर लीजिए, आप रोटेट करके वी कैन जी हाँ डिस्कस इट जी सम हाँ अदर डे जी हाँ, आल्सो, ठीक है। बट ये सामने है, बिल्कुल ठीक है सर। ये जिस दिन मैंने बनाया था वहां रांची का वो डालिएगा। हाँ जी अब आप उसको, आपको वो डालना पड़ेगा, ये नेटल चार्ट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर एनीबडी एल्स? इसमें हम फर्स्ट सेकंड और 11th हाउस लेते हैं। फर्स्ट सिक्स, और देखिए ऐसा है, मेनली तो फर्स्ट सिक्स हाँ 11th है। बाकी इनके कस्पल सबलॉर्ड्स जितने ज्यादा इंप्रूविंग हाउसेस के साथ को सिग्निफाई कर रहे हैं, इंप्रूविंग हाउसेस इन केपी 1 2 3 6 10 11, ठीक है। पॉलिटिक्स में नाइन्थ को हम कोरोनेशन कहते हैं, पॉलिटिक्स में हाँ जी वो एक अलग है, कृष्णमूर्ति। नाइन्थ वैसे तो देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नाइन्थ तो भाग्य स्थान कहा जाता है ना, इट इज द हाउस ऑफ गुड फॉर्च्यून। Although जी Krishnamurti हाँ ji, I don't know why he didn't give attach importance to ninth. Maybe because it negates 10th. So उनके केपी में नाइन्थ को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है पॉजिटिव सर। हाउस। मैचेस में तो 9th अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 10 फेम का है और 9 मैं उसको वही निगेट कर मैं रहा है। वही बात बोल रहा हूँ ना। जी हाँ जी हाँ लेकिन नाइन्थ का पॉलिटिक्स में नाइन्थ को माना जाता है। इवन कृष्णमूर्ति हैज जी हाँ रिटन वेयर ही हैज डिस्कस्ड पॉलिटिक्स, ही हैज रिटन दैट नाइन्थ स्टैंड्स फॉर कोरोनेशन, ताजपोशी। हम्म, जब कोई जीतता है तो नाइन्थ हाउस से देखता है। तो नाइन्थ हाउस इज एक्चुअली क्वाइट अ पॉजिटिव हाउस, क्योंकि फादर को भी इंडिकेट, मे जी बी हाँ 10th जी को हाँ नेगेट करता है नौकरी वोकरी के केस में, प्रोफेशन में, when you are changing your job or losing your job, so ninth comes into play because it negates the 10th house. जी और हाँ when you are changing your profession या प्रोफेशन में कोई नुकसान हो रहा है तो नाइन्थ उसमें comes into play, ओके। तो ये तो एक हो गया, ये पॉलिटिक्स का केस है। मैं डिस्कस कर लेता जी हाँ। हूँ, अब आप लोग खुद भी आप आपके सामने नोट कर लीजिएगा, और काफी देर तक वीडियो रहेगा, आप अपने अपने इसकी सर अपने बड़ी इसमें डाल करके देख मैचेस की बड़ी लीजिएगा। प्रैक्टिस की है सर। मैचेस मैचेस निकालता हूँ। हाँ जी हाँ चलो मैचेस एंड के लिए रखते हैं, ये ट्रम्प वर्सेस कमला हैरिस वाला देख लीजिए। देखिए ये तो प्रिडिक्शन है, ये तो आगे 6 महीने के बाद पता चलेगा इसमें क्या होना है, जी हाँ जी हाँ ठीक है। ये मैंने प्रिडिक्ट किया है 22 जुलाई को, इसका वीडियो भी डाल दिया है मैंने। अब आप इसको देखो, मैंने ऐसा टेबल बना ट्रम्प के लिए, नीचे हमने, ऊपर हमने देखिए डोनाल्ड ट्रम्प का, देखिए फर्स्ट कस्प, सिक्स कस्प, 11th कस्प पे सब लॉर्ड का नाम लिखा हुआ है, और इनके सिग्निफिकेशन है ए लेवल बी लेवल सी लेवल। ये डोनाल्ड ट्रम्प से ज्यादा नजर आ रहे हैं, आप देखिए, और सिक्स हाउस कहाँ ज्यादा नजर आ रहा है, ग्रीन टिक्स कहाँ ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड सिक्स हाउस सबसे इंपॉर्टेंटली डोनाल्ड ट्रम्प के केस में सिक्स कस्पल सबलॉर्ड जो है ना, सिक्स कस्पल सबलॉर्ड टेनेंटेड हाँ जी सबलॉर्ड है। The sublord representing victory, showing victory, is untenanted, sixth gospel sublord. So that उसमें डबल वेटेज मिल जाता है सिक्स gospel sublord होने से। मैं वैसे ही कर देता हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प के केस में 11th हाउस एट द ए लेवल, द बी लेवल, सी लेवल पे फिफ्थ को कर रहा है, विच इज नॉट गुड। बी लेवल पे 5 7 को कर रहा है, सबलॉर्ड सिक्स को तो कर ही रहा है, सी लेवल पे सी जो तीन लॉर्ड, दिस इज एक्चुअली द क्लिंच कर रहा है, और ये उल्टा हो जाता है। कमला माल की अगर आप लोगों ने वीडियो सुना होगा तो सारे 6 के 6 सबलॉर्ड्स मरकरी है, ये यूनिक है। ये पहले पहले मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए, कभी ऐसा हमें नहीं मिला था। केस में मरकरी के यहाँ सभी मरकरी हैं, इसी वजह से के केस में सबलॉर्ड थ्रू सबलॉर्ड सिग्निफिकेशंस आर वेरी फर्स्ट हाउस का स्ट्रॉन्ग। सब लॉर्ड जुपिटर है सर। 12 जी फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर है सर। है, हाँ फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है, फर्स्ट जी हाँ हाउस जी से हाँ दिख है जी ना हाँ आपके सामने। हाँ तो ये एक केस है आपके सामने, देखिए। जी हाँ अब ये तो रिजल्ट बताएगा, 5 नवंबर को इलेक्शन होता है, ठीक है। 5 नवंबर का हमने वो भी निकाल दिया है यहाँ पे, उस दिन क्या दशांतर दशमाई कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे नीचे इस 11th टेबल पे 11th कर रहा है। मरकरी क्या कर रहा है, 11th यहाँ देखिए 6th कर रहा है। वीनस क्या कर रहा है, इट कम्स टू डोनाल्ड ट्रम्प,
वीनस 7th को कर रहा है, ठीक है। फिर मरकरी आ गया, मरकरी क्या कर रही है, 5 नवंबर का है जिस दिन इलेक्ट कर रहा है। और फिर केतु आ गया, केतु क्या कर रहा है, केतु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केतु मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इवन थ्रू दी dasha combinations that will obtain on 5th of November, it appears to be a clear verdict for Donald Trump. As on date यही पोजीशन है। सब स्टार्स का सब लॉर्ड मरकरी है, जुपिटर का हाँ जी? मरकरी, जुपिटर का मरकरी है, मार्स का मरकरी और सैटर्न का मरकरी है। सब मरकरी है। सर वीनस के साथ मून भी है, तो वो मून भी रिजल्ट देगा वीनस का, फिर हाँ जी? वीनस बुरा नहीं रहेगा सर। सर वीनस हाँ? और मून कंजक्शन में है, वीनस के साथ वीनस मून और कहाँ है? मून कंजक्शन मरकरी में है है सर, वीनस के साथ मून सर। कहाँ है? मून कंजाइनिंग में है सर, सर नहीं, कंजाइनिंग वीनस में के है, साथ मून कंजाइनिंग कहाँ में है? है। मरकरी। सर मून आवाज 18 तो डिग्री पे है और वीनस 18 डिग्री पे है, दोनों दोनों नहीं, कैप्रिकॉर्न में है। वीनस के साथ मून कहाँ है, वीनस के साथ? सर मैं प्लानिटरी पोजीशन में देख रहा हूँ। वीनस के साथ मरकरी है, मून नहीं है। वीनस के साथ ठीक मरकरी ठीक है, है, ठीक है। ठीक कह रहे हो आप आदि, ठीक कह रहे हो आप, वो कैंसर है, ठीक है। हाँ, मरकरी और वीनस एक साथ है ना, मून तो नहीं है ना, मून हाँ तो जी, यहाँ है। हाँ, नहीं नहीं मून नहीं है, मून कैप्रिकॉर्न में है। मून नहीं है, वीनस और मरकरी है। हाँ आपकी आवाज बहुत वो आ रही है, बहुत क्रैक कर रही है। रिकॉर्डिंग में ठीक ही सुनाई पड़ती है, पता नहीं ऐसे क्यों क्रैक कर रही है। तो ये देखिए, इसमें ये मेरे ख्याल से तो मेरा प्रेडिक्शन सही होना चाहिए, ये पता तो चलेगा सर, 6 महीने बाद। लग तो रहा है, बाजार हाँ, लग देखने रहा में तो है। ठीक लग रहा है बिल्कुल। हालात भी कुछ ऐसे ही लग रहे हैं, सुनने में जैसा आता है, वी डोंट नो, वो तो इतनी दूर से ही जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, न्यूज़ वगैरह देख करके जो समझ में आता हाँ है। और प्लानिटरी पोजिशंस तो बता ही रही हैं, लेट अस सी। हाँ बट दिस इज हाउ यू प्रेडिक्ट एन इलेक्शन और एनी कॉम्पिटिशन फॉर दैट मैटर, जो मैंने जी हाँ। आपको बताया। बच्चे का भी अगर एग्जाम का वो देखना है, कंपटीशन में निकलेगा कि नहीं, सेम फॉर्मूला है, ठीक है, सेम फॉर्मूला है। ये ओपोनेंट का कैसे उलट देते हैं, हमको तो ये नहीं समझ में। हाँ, ओपोनेंट का कैसे चार्ट उल्टा कैसे करते हैं उसका? वो तो है ना, सॉफ्टवेयर में है, वो रोटेट उसकी करने का फैसिलिटी है। ओ, सॉफ्टवेयर में है, रोटेट करने का सॉफ्टवेयर में है ना। नेट ज्यादा ही स्लो चल रहा है, नेट नहीं स्लो चल रहा है, इस लैपटॉप में प्रॉब्लम वो होगा। वही ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है कि नहीं? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा। ओलंपिक्स खोलने के लिए खुल जाता है तो मैं दिखा, का प्रेडिक्ट होगा क्या? पता ही अभी नहीं तक चल मैंने रहा है, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। टीमें खेल रही, दो टीमों का आप कर सकते फाइनल, हैं। या फिर कोई भी है, ट्राई है। रुको मैं दिखा रहा हूँ, है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर चार्ट आज चलेगा लाइव। सर मैं शेयर करके दिखा दूं? एक सेकंड, एक सेकंड। ये चार्ट खुल गया क्या आप लोगों जी के खुल सामने? गई। हाँ, खुल गया ना? जी सर। देखिए आप, कौन पूछ रहा था रोटेट कैसे नहीं करते पूछ हैं? रही। हाँ देखिए, ये यहाँ पे नीचे कर्सर देखिए, ये लिखा है ना यहाँ नीचे रोटेट चार्ट। तो अभी ये चार्ट फर्स्ट हाउस के लिए बना हुआ है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये सारे हाउसेज आ जाएंगे, किस हाउस के लिए ओ, रोटेट करना है। 7th हाउस has become the ascendant, this chart is rotated by the 7th house ascendant। ये आ गया यहाँ पे। अब आप इसको ओपोनेंट के लिए, ये चार्ट हो गया, इसको आप स्टडी कर लो। दिस इज हाउ इट इज डन। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीका होगा, लेकिन ऐसे होना चाहिए सभी में। तो बीजेपी वाला हो गया या ये ट्रम्प वाला हो गया, ये छोड़ फिर से खोलूं? हो गया सर, हो गया सर।
कम बोला तो हुआ, चलो कम बोला इंडिया साउथ अफ्रीका उस दिन जो मैच हुआ था, ये देखिए। जिसमें वो अच्छा इंडिया जीता तो था ये हमने जिसमें, बहुत राइट में। ठीक है। ओके, राइट साइड में सेम चार्ट रोटेटेड इज फॉर साउथ अफ्रीका, और ये कस्पल पोजीशंस भी हमने अलग करके पेस्ट कर दिया कट करके, ठीक है। और ये कस्पल पोजीशंस यहाँ हमने ये भी पेस्ट कर दिया कट करके, और अपना एनालिसिस नीचे। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड क्या क्या सिग्निफाई करता है, ये ऊपर डायरेक्ट सिग्निफिकेशंस हैं, और नीचे ये ब्रैकेट में ये नीचे सबलॉर्ड के थ्रू सिग्निफिकेशंस हैं। अब आप देख लीजिए और एनालाइज करिए, बताइए। देखिए इट वाज सो क्लोज, तो मैंने क्यों कहा था कि इंडिया को एज मिलेगा, उसका पहले आप स्टडी कीजिए। आप ताहिर जी बताइए मेरे को, फिर बात करते हैं। आप ही एनालाइज करो, मैं शांत हूँ। जरा जोर से बोलिएगा, आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे है, ये कौन सा है जिसका सब लॉर्ड जो है सैटर्न है? ये हाँ, ये तो सामने है ना सभी के लेफ्ट साइड पे। मेरे इंडियन, लिए इंडिया, कर्सर देखिए, कर्सर, ये ये इंडिया है। ये इंडिया का है, हाँ ये इंडिया, इंडिया का है। ये इंडिया है, हाँ और ये साउथ अफ्रीका है। ये मतलब नीचे वाला, ये साउथ जी हाँ। अफ्रीका। हाँ ये सर ऊपर, सर इसका फर्स्ट हाँ, हाउस 12 8 9 दे रहे हैं ये कट ए गया है, मैं लेवल पे। दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर लिखा है हाँ जी, मैंने। हाँ, आ गया। हाँ ये देखो आ गया, इंडिया। जी हाँ। इंडिया चार्ट फर्स्ट कप, साउथ अफ्रीका चार्ट सेवेंथ कप, ठीक है। ये देखिए क्या आ गया। 11th दे रहा है, 11th। This is a very very close prediction to make, very close. सर इसमें तो लगता है दोनों जीत जाएंगे। बिल्कुल सही लगी ना आपको। एंड तक तो पता ही नहीं चल रहा था हाँ ना, एंड तक तो पता नहीं चल हाँ कौन जीतेगा। हाँ, इसलिए तो जी ऐसे हाँ एक कैच के चलते। हाँ हाँ। 9th, 12th भी तो दे रहा है सैटर्न फर्स्ट हाउस में, जिसमें फर्स्ट का इसमें देखिए, इसमें आप जब इतना क्लोज होता है ना, तो आप एक ग्लांस जो है ना सिग्निफिकेटेड टेबल पे मारिए। ये जो हमने 11 में फेंस कर दिया है ऐसे, ठीक है, जी सर। और ये 5 में फेंस कर दिया है ऐसे, ये सीधा सीधा इंडिकेशन देता है क्या 11th, मतलब है। इच्छा पूर्ति 11th के देखिए, 5 planets for India are in the 11th house, ठीक है। 5 planets, ये डिसाइसिव है, इवन इफ दे आर नॉट द कस्पल सबलॉट्स, बट कहीं ना कहीं तो वो एक्ट कर रहे हैं, इंप्रूविंग हाउसेस। 11th इज वन ऑफ द मेन हाउसेस। और सेम प्लैनेट्स साउथ अफ्रीका के केस में 5 प्लैनेट 5th को दिखा रहे हैं, विच इज गेन्स टू द ओपोनेंट, negating the 6th house. तो ये जो है, आई थिंक दिस वेड इन फेवर ऑफ इंडिया। दूसरा, फिर हमें ए और बी के चक्कर में ये नहीं भूलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये देखिए मरकरी, ठीक है, मरकरी उस दिन हमने बताया था ना, मरकरी का देखिए, ये मरकरी बी लेवल सिग्निफिकेटर नजर आता है 6th कस का, लेकिन इसका हाउस जो है ना अनऑक्यूपाइड है, इसका हाउस अनऑक्यूपाइड है। जी हाँ जी हाँ। ठीक है, हाउस अनऑक्यूपाइड होने से क्या होता है, और खास करके स्ट्रांग हो अगर जाता है। हाँ राशि है, तो वो फिर उसको ए लेवल के टाइप से ही सिग्निफाई करता है, ए लेवल के टाइप से ही सिग्निफाई करता है। इट हैज ऑलमोस्ट द सेम स्ट्रेंथ, सो दैट ऑल्सो, दिस इज अ वेरी वेरी इस ऐसे जब आते हैं तो आपको बहुत, यू हैव टू रैक योर ब्रेन्स अ लॉट, बहुत उसमें आपको दिमाग खर्चा करना पड़ेगा टू कम। सुपरफिशियली आप देखिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसमें तो एक्चुअली लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, फिर बाद में मैंने बहुत जब अपने दिमाग को खंगाला तो मुझे ये नजर आया, एक तो ये ऑल दीज 5 प्लैनेट्स क्लस्टर में ये जो है ना इंडिया के 11th हाउस को दिखा रहे हैं। और यही सेम फिर जब चार्ट पलटिएगा तो 11th बिकम्स द 5th, तो ये 5 प्लैनेट जो है ना 5th दिखा रहे हैं। 5th दिखा रहे हैं मतलब इट इज गेन्स फॉर द ऑपोजिशन। तो दिस और सर वे, 6th हाउस साउथ अफ्रीका का स्ट्रांग है।
11th हाउस इंडिया का स्ट्रॉन्ग है। 11th हाउस इंडिया का है। सिक्स भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग है। 6th हाउस देखिए, 6th हाउस भी, यहाँ भी 6 और 11 सर आ रहा है, यहाँ भी 6 ए और लेवल पे ए लेवल पे 2 यहाँ भी सिग्निफिकेशन है, 6 बी और लेवल 11, पे 2 सिग्निफिकेशन है साउथ यहाँ अफ्रीका दो की। बार 6 और 11 आ रहा है। ठीक है, जी हाँ। आपकी बात सही हाँ है। यहाँ पर जी हाँ। यहाँ पर 6-11 आ रहा है। इंडिया के 3-3-3-3 बहुत है। 3 ऑल्सो काउंट्स अ लॉट। देखिए, जी 3 हाँ। मतलब दैट क्या हुआ था, आपने देखा होगा, दैट फाइटिंग स्पिरिट टिल द एंड। लास्ट 4 ओवर्स तक तो लग रहा था खत्म हो गया, मतलब एवरीबडी हैड गिवन अप। बहुत लोगों ने तो अपना टीवी भी बंद कर दिया था इंडिया में, कि जी हो हाँ। गई, कहानी खत्म हो गई। बट वो लास्ट 4 ओवर्स में दैट फाइटिंग स्पिरिट, व्हाट इज थर्ड हाउस, इट इज करेज, करेज, करेज। जी हाँ। फाइटिंग स्पिरिट, नेवर गिव अप एटीट्यूड। वो थर्ड हाउस जो है ना, इंडिया का थर्ड हाउस जो है ना, बहुत सारे 3-3-3-3 भी नजर आ रहे हैं इसमें। इनमें भी नजर आ रहे हैं, इंडिया में भी नजर आ रहे हैं। और ये एक्चुअली एंड में जाकर के ये 5 प्लैनेट जो है ना इंडिया के फेवर में, जो 11th हाउस में नजर आ रहे हैं, आई थिंक दिस वाज व्हाट डिसाइडेड द मैच इन फेवर ऑफ इंडिया। But sir, it's a very difficult to इट predict इज डिफिकल्ट, इट इज any chart डिफिकल्ट, like बट this. जी हाँ। इट इज डिफिकल्ट। ये कोई आप जैसा बंदा कर सकता है, हमें तो नहीं समझ आता नहीं, सर। मेरे जैसा क्या, वो हाँ सब बातें नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ। वो सब बातें नहीं है, लेकिन क्योंकि नेकेड आई से तो सर बहुत ही टफ है ये। मैच भी टफ था। मैच भी। मैच भी टफ था, तभी तो ये चार्ट हाँ, वो टफ फिर बना हुआ देख है। लो ना, आप देखो फिर वो, अभी अभी मैं देख रहा हूँ, उस समय तो मैंने भी नहीं देखा था। अभी देखिए, आप रूलिंग प्लैनेट्स को भी देख लीजिए। रूलिंग प्लैनेट्स हमने निकाले हैं, वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द रूलिंग प्लैनेट्स। ये 5 हाँ प्लैनेट जो इधर 11th को दिखा रहे हैं ना, ये देखिए रूलिंग प्लैनेट्स में, देखिए इंडिया के रूलिंग प्लैनेट से मिलाइए उन 5 प्लैनेट्स को। मून, मरकरी, सैटर्न, सैटर्न नहीं, जुपिटर, वीनस। जुपिटर भी आ गया सर इसके अंदर। फिर एक सैटर्न के अलावा सारे आ गए ना, जी हाँ, सैटर्न के अलावा सारे आ गए। सारे आ गए। वीनस भी और आ गए। फिर यहाँ 5th हाउस में चलेगा साउथ अफ्रीका के रूलिंग प्लैनेट्स। हाँ जी, हाँ जी। तो दिस इज अनदर डिसाइडिंग फैक्टर। तो एवरीथिंग, सब कुछ आपको लेना पड़ेगा, सब कुछ यू हैव टू। इसमें सर हमने ये आप सर आप इसका एनालिसिस करना वैसे भी आसान है, क्योंकि मैच हो चुका है। नहीं नहीं, मैंने तो खैर पहले आपसे और नहीं, अदिति मैं से, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल हाँ, बात कर रहा हूँ। आपसे आपसे और हाँ अदिति से मेरी बात हुई थी इसके जी हाँ, पहले। जी हाँ, जी हाँ। पहले हम लोग उस हाँ दिन खास करके, वो संडे संडे का दिन था शायद, हम लोग जी, जूम बिल्कुल जूम मुझे पर याद आए है सर। थे। हाँ हाँ हम हाँ। लोगों ने उस समय ये मैंने बनाया नहीं था शायद, ये बाद में बनाया मैंने। जी हाँ, जी हाँ। अदिति से नंबर पूछ करके कौन सा नंबर था। तो देखिए, इसमें मैंने हाँ लिखा कि apparently from the signification of the cuspal sublords of first, 6th and 11th houses of both teams, there appears to be equal strength for both sides. That is, a tight finish is promised. However, please see how many 11th house level significations are there for India. अब इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूंगा, प्लीज सी द रूलिंग प्लैनेट्स। ऑल द रूलिंग प्लैनेट्स सिग्निफाई द 11th हाउस ऑफ इंडिया। एक कमेंट इसमें एक और आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन। जी हाँ। अभी इसको और डेप्थ में जाइएगा तो और एक आध चीजें निकल करके आएंगी, और एक आध चीजें निकल करके आएंगी। अब मैंने चार्ट नहीं रखा है, मैंने चार्ट को रखना जरूरी नहीं समझा, हो सकता है उसमें उस दिन कोई कंजंक्शन भी हो, अब मुझे अब याद नहीं है, नजर भी नहीं आ रहा है, कोई ऐसा कंजंक्शन भी हो जिसके वजह से हाँ, कंजक्शन भी इम्पैक्ट हो हुआ सकते हो, हैं। जी हाँ। है ना। क्योंकि जब सब लॉर्ड्स देखते हैं तो चार्ट के ऊपर नजर कम जाती है, वो भी देख लेंगे, उसको टाइम तो है ही है इसमें। ये वहां का है, निकालिएगा अगर आप लोग तो आप देखो, ये वहां का है, स्विंडन। अदिति ने जो निकाला था, टाइम ऊपर दिया हुआ सर है, अब बड़े उसी दिन का निकाल करके बड़े देखिएगा। बड़े मैच आ रहे हैं ओलंपिक के लंदन साथ, का इन पे करेंगे नहीं। प्लान, हाँ, हाँ, स्विंडन ये जगह था, ओलंपिक्स के बड़े स्विंडन। मैच आ रहे हैं। 11th और 3rd के कारण जीता लगता है। ठीक है, 11th और तो 3rd। आई थिंक दैट विल, अभी एक एक मैं प्रैक्टिस करूंगी, मैंने तो अभी तक एक भी नहीं निकाला। दैट वाइंड्स अप आवर डिस्कशन ऑन द 6th हाउस। अब हमें करना रह गया है एक तो 4th हाउस करना रह गया है, प्रॉपर्टी। कोर्ट केस भी अगर आपको देखना है तो ये सेम फॉर्मूला विल अप्लाई, सेम रूल्स। ओके, कोर्ट केस में, लिटिगेशन में आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, सेम थिंग, सेम थिंग 164। सेम थिंग विल अप्लाई। और अब हमें रह गया, 4th हाउस रह जाता है, जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे हम, बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी। कोर्ट केस में क्या क्या देखेंगे? 1, 6 और 11। 1, 6, 11, हाँ।
बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टी, एजुकेशन उसमें तो 4-3 फोर्थ हाउस से, और प्रोफेशन। ये 3 मेन टॉपिक्स बच जाते हैं हमारे। उसके बाद हमें करना है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, एंड देन दैट विल फिनिश आवर केपी कोर्स। ठीक है, बाकी कुछ रह जाएगा तो आप लोग, यू कैन ऑलवेज, आई थिंक वी हैव अनदर 6-7 क्लासेस। बीटीआर में लग जाएगा 1-2 क्लास, एक प्रॉपर्टी में एक, या प्रॉपर्टी में शायद प्रॉपर्टी और एजुकेशन में 1 या 2 क्लास, और प्रोफेशन में 4 क्लासेस मान के चलिए उसमें, और 2 क्लास बीटीआर में, और एक फिर जनरल हम लोग कुछ बात करेंगे, एक रेमेडीज वगैरह पे थोड़ा बात करेंगे। तो अनदर 7-8 क्लासेस टू गो। ओके सर, इनसे इनसे जो सॉफ्टवेयर वाले हैं, ट्रू स्टोरेज वाले, अगर इनसे बात करें, ये जो हाउस, ये जो प्लैनेट कंजाइनिंग है, ये क्यों नहीं डालते सर ये सिग्निफिकेशन के अंदर? क्या ये पॉसिबल नहीं है? हाँ हाँ, क्यों नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल है पॉसिबल, हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये डाल दे तो फिर ये वाली हमें वो देखना भी नहीं पड़ेगा अलहदा, क्योंकि वो जनरली ओवरलुक हो जाता है। ये जो प्लैनेट कंजाइनिंग है ना, ये जनरली ओवरलुक हो जाती है। नहीं है ना, संभव है, क्यों नहीं है। हाँ, तो आप उनको सर सजेशन दीजिए। मैं दे सकता हूँ कुछ सजेशन, मैं इसको नोट कर ही देता हूँ, नहीं तो फिर जी ये हाँ, जी हाँ, हाँ। रह जाएगा। एक मिनट क्योंकि मैं इसको, आपकी बात का वेटेज होगा, हमारी नहीं नहीं, बात वो की तो वैल्यू वो नहीं तो होगी। मेरी मेरी हाँ, कई बातें मान करके बहुत सारे उन्होंने मॉडिफिकेशंस किए जी हैं हाँ, जी हाँ, हाँ, हमारे कहने पर। जी हाँ। मैं इसमें भी ऐड करना चाह रहा था, ये खुल नहीं रहा, देखता हूँ अगर खुल जाता है तो। रुकिए, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। देखिए, कुछ डाउट्स वगैरह अगर हों तो उसको प्लीज आप लोग नोट करते जाइए, बिकॉज नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स, वी आर ऑलमोस्ट, हम लोग अब खत्म करने वाले हैं अपना। उसके बाद फिर वो कहने की बात एक होती है कि हाँ, कभी भी आप मेरे से कंसल्ट कर दीजिए, आई ऑलवेज बी देयर, लेकिन ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द कोर्स अगर कोई डाउट्स है उस पर क्लैरिफिकेशन अगर ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज ऑल ऑफ यू कि जरूर से कोई डाउट्स हो तो नोट कर लीजिए, और उसको हम लोग सी, इसमें हम, आई एम पुटिंग अ नोट इवन फॉर आउट ऑफ 5 RPs signify the 11th house of इंडिया। ये भी एक हमने इसमें नोट डाल दिया। ठीक है, कौन जीता कौन हारा? जापान। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर 6th हाउस। किताबें आप लोग जितनी हो सकती है मंगवा लीजिए, किताबों मेहनत करना पड़ेगा, सिर्फ आप कोर्स करके और बिना कोर्स करके बिना रीडिंग के, मतलब जी जिस सर, लेवल ठीक पे है। तो पहुंचना चाहिए थोड़ा मुश्किल होगा पहुंचना, इसीलिए ट्राई एंड, any doubts, ओके any सर। doubts for the 6th pertaining to the 6th house? नहीं सर, मुझे तो कोई नहीं। आप तो ऑलरेडी एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर, आप तो नहीं सर, परफेक्ट हो ये गया ना। आपने तो हमसे भी मैंने ज्यादा पढ़ाई कर रखी है ना। नहीं आप सर, मैंने 6th हाउस। आप तो कोर्स वोर्स किसी की ज्वाइन करके वो आप अपना टाइम पास कर रहे हो, है ना। नहीं आप सर, मैं मुझे पढ़ना अच्छा लगता है सर। शौक के तौर पे आप ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। नहीं सर, होता पता क्या सर,
आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ जरूर नया सीखते हैं। नहीं वो तो है, ये मुमकिन ही नहीं है आप। जी हाँ। तो मेरी वो जो प्यास है ना सर, मेरी वो प्यास खत्म नहीं हो रही अभी तक, वो सीखने वाली। सही बात। जी हाँ। बस खाली ऐसा है ना, वो देखिए बहुत ज्यादा जो लोग इसमें यूट्यूब में घुसे हुए हैं ना, बस मेरा एक ही डर है कि किसी कोई गलत थियरी के चक्कर में ना पड़ जाए, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, उसमें मत पड़िएगा बस, और कुछ नहीं है। लर्निंग ऑफ कोर्स है, स्काई इज द लिमिट, देयर इज नो एंड टू लर्निंग। जितना आप सीख, जितना पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उतना फायदा होगा। लेकिन किसी गलत थियरीज के चक्कर में आजकल नहीं ऐसा। सर, मैं बेउस्तादा मैं बेउस्तादा बंदा नहीं हूँ सर। हाँ, मैं गाइडेंस के साथ चलता हूँ सर। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं जी हाँ। बस वही मुझे हाँ लगता है, क्योंकि उस दिन दैट्स वेरी स्वीट ऑफ जो यू। मैंने रखा था हाँ उसमें एक दो लोग आए थे, वो लोग बात कर हाँ रहे थे, वो बताया ना हमने, खैर नहीं, वो एक ही चीज को बार बार क्या हाँ रिपीट करना है। चलिए, एनीवे, सो हाँ। we'll end this session, we'll call it a day, and जी इंशाल्लाह। we'll meet again on थैंक यू Sunday. सर। Okay, जी थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। आप लोग भी इधर चार पांच थैंक दिन यू। लगातार वर्कशॉप ये वो लेकर के, आप लोगों का भी काफी हेक्टिक हो जी गया, हाँ। अब थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। हाँ। ठीक है, चलो, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक तो यू, गुड नाइट सर, सर, गुड नाइट। कुछ बात है गुड क्या नाइट एवरीवन। रविंद्र जी, जी सर। कुछ पूछ रहे हैं? नहीं नहीं सर, थैंक यू, प्रणाम प्रणाम। ओके ओके, गुड नाइट।